Hello everyone, how are you? Last time we had discussed about the chapter 2 and let's continue to the same topic chapter 2. Let's continue. Last time you have learned about the explanation of this chapter. Okay, let's go to the exercise. We have completed the explanation of this chapter and I think you have learned all the things about the shoemaker and the elves. shoemaker कैसे गरीब था, फिर उसने वो कैसे अमीर बना और उसको अमीर बनने में कैसे जो छोटे छोटे परियां थी उन्होंने हेल्प की, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए इसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए आगे इसके एक्सरसाइज को देखते हैं। As you can see, this is the first exercise of your lesson 2. This is the word meaning. This is the word meaning. In the word meaning, the first word is to scrub. To scrub means to rub hard for cleaning. It means in the Hindi meaning of to scrub is रगड़ना. सेकेंड वन एल्व्स. एल्व्स मीन्स परियां या छोटे जादूगर. परफेक्ट. परफेक्ट मीन्स उत्तम, अच्छा. सरप्राइज, आश्चर्य. टू फिनिश, पूरा करना या पूरा या खत्म करना. एक्सलेंट, बहुत अच्छा, उत्कृष्ट. कर्टन. कर्टन, अ पीस ऑफ क्लॉथ हंग, जो इट मीन्स द पर्दा. रैग्स, पुराने या खराब कपड़े. इंस्टीड, के बदले. क्रॉस लेग, पालथी मारना. बेयर, नग्न या खुला. सो यू हैव टू लर्न दिस वर्ड मीनिंग्स टू अंडरस्टैंड द लेसन. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. इट इज द reading comprehension. What is it? It is reading comprehension. Let's go to the reading comprehension. As you can see, first exercise of the reading comprehension is A. Tick the correct answer. You have to find out, you have to understand which one can be the correct answer. Okay, let's see the first question. The shoemaker wanted to sew shoes. shoemaker अपने जूते को कब सीना चाहता था? जब उसने अपने जूते का लेदर जो था उसको काट दिया. काटने के बाद उसे कब सीना चाहता था? Early in the morning, next day, at midnight, previous day. कब करना चाहता था? क्या हो सकता है? What can be the right answer? Early in the morning, next day. What can be the answer? The right answer is the next day. Right answer is the next day. Okay, like this you have to understand this lesson and you have to solve all these questions. Question number 2, 3, 4, 5. These 4 questions I have left for you. Okay, let's go to the question number B. Question number B. Say whether the following statements are true or false. आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये जो कथन दिए गए हैं वो सही है या गलत है. ठीक है, अगर सही है तो उसे सही लिखेंगे और गलत है तो गलत लिखेंगे. कहने का मतलब है ट्रू लिखेंगे या फिर फॉल्स लिखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, द shoemaker was very poor. It is right, so I write here it is true. It is true. It is true. Like that you have to understand these all questions by reading these questions and you have to solve these questions. Okay, let's go to the exercise number C.
Exercise number 3 is answer the following question. This is the question answer, and in this question this question's answer has been given in the last of the video. You can note down all the questions answer by pausing the video. Okay, so you will get the answers of these questions in the last of the video. Okay, our next exercise is vocabulary. Our next exercise is vocabulary. First, let's go to the first exercise. First exercise is vocabulary A. Fill in the blanks choosing appropriate word given below. ओके आपको ये फिलअप यूज़ करना है, ये जो हमारे बॉक्स में दिया हुआ है उसको देखते हुए, और उसमें क्या राइट आंसर होगा ये भी आपको बताना है. ठीक है, चलिए देखते हैं. लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. अ फेरी लाइक क्रीचर्स विद द पॉइंटेड ईयर इज कॉल्ड. ऐसा जो परी के जैसा कोई जीव होता है जो इसके नुकीले क्या होते हैं, पॉइंटेड ईयर्स, जिसके नुकीले नुकीले से क्या होते हैं, कान और नाक होते हैं, उसे क्या कहते हैं. तो उसे क्या कहते हैं हमें यहाँ पे देखने से पता चल जाएगा. स्टिचेस, रैग्स, एक्सीलेंट, कर्टन, एल्फ. ओके, हम लोगों ने इस लेसन में किसके बारे में पढ़ा है, एल्फ के बारे में. तो इसे क्या कहते हैं, एल्फ. ELF, ELF. ओके, like that you have to solve the question number 2, question number 3, question number 4 and question number 5. You have to read these questions and you have to understand these questions, okay, and then solve them. Let's go to the exercise B. Exercise B. Some words are given in the box. Make sentences using these words. The first one is done for you. ठीक है, हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें बॉक्स में जो वर्ड दिया गया है उसे हमसे यूज़ करते हुए सेंटेंस बनाना है. ओके, पहला एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, उसे देखते हुए समझते हुए हम यहाँ पे आपको क्या करना है, एग्जांपल के अकॉर्डिंग ही आपको सेंटेंस बनाना है जैसे क्वेश्चन में दिया गया है. देयर इज़ अ हट एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट. ठीक है, देयर इज अ हट एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट. सेम वैसे ही आपको एज वर्ड को अपने सेंटेंस में यूज करना है, फिर एक्सलेंट वर्ड को, फिर एस्ट्रो वर्ड को, देन टाइनी, देन स्ट्रक एंड लास्ट वन रैग. यू हैव टू यूज दिस सेंटेंसेस वर्ड्स इन योर sentences. Okay, so it's up to you what kind of sentence you want to make. It's up to you, but there is the obligation that you have to use these words in your sentences one by one. Let's see the question number C. What question number C is saying? The word given below have more than one meaning. Consult the dictionary and write their meaning. कोई भी जो इसमें वर्ड दिया गया है उसके दो मीनिंग होते हैं. वर्ड एक ही है, उसके दो मीनिंग होते हैं. ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या किया गया है, उसके दोनों वर्ड मीनिंग को हमें डिक्शनरी से ढूंढ कर लिखना है. फर्स्ट, जैसे यहाँ फर्स्ट एग्जांपल दिया है वुड. वुड का एक मीनिंग होता है फॉरेस्ट और सेकेंड मीनिंग होता है हार्ड सबस्टेंस ऑफ द ट्री यूज्ड फॉर फ्यूल. वुड का मतलब हिंदी मीनिंग होता है लकड़ी भी होता है, और पहला मीनिंग होता है वो होता है जंगल, और दूसरा मीनिंग होता है वो होता है लकड़ी. जनरली हम लोग वुड का मीनिंग लकड़ी से लेते हैं, जिसका हम लोग जलाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, वैसे ही और भी वर्ड्स हैं, उसका मीनिंग देख लेते हैं. चलिए मैं पहला देखता हूँ. ये देखिए, लुक एट हियर, दिस इज द फर्स्ट वर्ड. इट्स मीन फाइन. फाइन का मतलब होता है, एक होता है गुड, ओके, एंड सेकेंड वन इज वेरी थिन और वेरी स्मॉल. वेरी
थीन और स्मॉल, बहुत महीन, महीन, फाइन मतलब क्या होता है, बहुत ही महीन, है ना। कभी कभी बोलते हैं कैसे हैं आप लोग, तो हम लोग बोलते हैं अच्छे हैं, फाइन, वी आर फाइन, आई एम फाइन, ऐसा बोल देते हैं। फाइन का मतलब होता है अच्छा। और कभी कभी बोलते हैं इट्स वेरी फाइन, मतलब बहुत पतला, बहुत ही महीन, ठीक है। तो फाइन की मीनिंग दो बार अलग अलग होती है। वैसे ही आपको सारी वर्ड्स के आपको टू टू मीनिंग्स आपको ढूंढना है और उसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा कौन सी एक्सरसाइज है, वो है एक्सरसाइज डी। एक्सरसाइज डी में हमें क्या करना है, मेक सम वर्ड्स यूजिंग द फॉलोइंग सफिक्सेस। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इन सफिक्स को यूज करते हुए क्या बनाना है, वर्ड्स बनाना है। सफिक्स, सफिक्स मतलब होता है ऐसा कोई लेटर या वर्ड का पार्ट, ठीक है, जो दूसरे वर्ड के साथ लास्ट में जुड़ता है। किस में जुड़ता है, लास्ट में जुड़ता है, उसे कहते हैं सफिक्स, और उससे एक नई मीनिंग फिर बनती है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, म्यूजिक में लास्ट में जुड़ा है IAN, तो उससे नया वर्ड बना है म्यूजिशियन, और म्यूजिशियन का मतलब होता है संगीतकार। क्या होता है, संगीतकार, ठीक है। जैसे क्रिकेट, अब इसमें लग क्या जुड़ा है, ER जुड़ा हुआ है, क्रिकेट प्लस ER को जोड़कर बन गया क्रिकेटर। क्रिकेटर मतलब क्या होता है, क्रिकेट खेलने वाला, ठीक है। IST आर्ट, आर्टिस्ट। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, ये एग्जाम्पल को समझते हुए बाकी उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमें एक्सरसाइज में मिलता है एक्टिविटी। एक्टिविटी में क्या करना है, पहला एक्सरसाइज देखते हैं, लिसन टू ए स्टोरी एंड गिवन इन द इंफॉर्मेशन, सी द अपेंडिक्स 1, लेसन नंबर 2। अपेंडिक्स 1 में जाना है हमें और लेसन नंबर 2 को रीड करना है और रीड करके समझना है, और समझ के इस एक्सरसाइज 1 एंड 2 को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हो गया आपका होमवर्क, ये क्या है आपका होमवर्क है, HW है, ठीक है। मतलब ये पूरा काम आपको खुद से ही करना है, खुद से ही अपेंडिक्स में जाना है, पढ़ना है, समझना है, और उसके अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज क्या कह रहा है उसको समझ के पूरा सॉल्व करना है। अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर फ़ोन करके, कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। बहुत मज़ेदार एक्टिविटी रहती है, बहुत ही इजी रहता है, बहुत ही छोटे बच्चे उसको समझ जाएंगे, इतना इजी रहता है, ठीक है। चलिए वैसे ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी में, इमेजिन दैट यू आर वन ऑफ द एल्व्स। कल्पना करो कि तुम भी एक परी हो या एक जादूगर हो। व्हाट वुड यू से इफ़ यू गॉट अ न्यू ड्रेस। आप क्या कहेंगे, आपका मनोभाव क्या होगा जब आपको एक नया ड्रेस मिलेगा। से इट इन वन वर्ड और अ फ्रेज और अ सेंटेंस। आपको एक शब्द में, एक वाक्य में या फिर एक फ्रेज में आपको बताना है कि आप क्या कहना चाहेंगे। जो भी आपकी इच्छा हो आप कह सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके सोच पे डिपेंड करता है कि आप क्या कहेंगे, ठीक है। हियर इज सम इंटरेस्टिंग पेयर वर्क फॉर यू। अब यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, पेयर वर्क दिया गया है। इमेजिन दैट वन ऑफ यू इज एन एल्फ एंड द अदर पर्सन इज शू मेकर्स वाइफ। अब आप कल्पना करो कि आप में से कोई एक क्या हो, परी हो, वो जो जादूगर है वो है, और कोई एक क्या बन जाए, वो उसमें किसका रोल करे, उस शू मेकर की वाइफ का रोल करे, ठीक है। आफ्टर द एल्फ पुट्स ऑन द न्यू क्लॉथ एंड शूज, द शू मेकर्स वाइफ आस्क द एल्फ व्हाट एल्स ही वांट्स। अगर कभी ऐसा हो कि वो जूते और कहना चाहिए ड्रेसेस रखने के बाद वो कहे, एल्फ जो कहे, अब बताओ, तुमने तो मुझे जूता और ड्रेस देके बहुत खुश कर दिया, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है।
द एल्फ आस्क फॉर द shoemaker's वाइफ कैन नॉट गिव। द एल्व्स आस्क फॉर थिंग्स दैट द shoemaker's वाइफ कैन नॉट गिव। और उस स्थिति में जो एल्फ है वो ऐसी चीज मांगता है जो जो शू मेकर की वाइफ है वो नहीं दे पाता या नहीं दे पाती। सी इज सॉरी एंड सी रिफ्यूज। सी इज सॉरी, उसे वो अपने इस बात के लिए क्या करती है, क्षमा मांगती है ना, ग्लानी व्यक्त करती है और क्या करती है, वो उसे रिफ्यूज कर देती है, मना कर देती है। प्ले द रोल ऑफ द एल्फ एंड द शू मेकर। गिवन बिलो इज एग्जाम्पल। वुड यू प्लीज गिव मी अ बेल्ट मेड ऑफ गोल्ड। अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ठीक है, उसी का एग्जाम्पल दिया हुआ है। कहने का मतलब है इसमें हमें क्या करना सीखना है, हमें क्वेश्चन पूछना सीखना है, कुछ चीज़ को मांगना सीखना है। इस एक्सरसाइज से हमें क्या सीखना है कि अगर हमें किसी से कोई मांगना है, अपने पेरेंट्स से कुछ मांगना है या किसी फ्रेंड से कुछ मांगना है, तो उसे हम कैसे मानेंगे, उसका सेंटेंस कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, इसके बारे में ही एक प्ले के रूप में समझाने की कोशिश की गई है। तो वो एल्फ क्या कहेगा, वुड यू प्लीज गिव मी अ बेल मेड ऑफ गोल्ड। वुड यू प्लीज गिव मी अ बेल्ट मेड ऑफ गोल्ड। क्या आप मुझे सोने से बना हुआ एक बेल्ट कमरबंद देंगे। शूमेकर वाइफ, अब जो शूमेकर है उसकी पत्नी कहते हैं, आई एम सॉरी डियर, हाउ कुड आई बाय सो मच गोल्ड। है ना, मुझे माफ़ करना, मैं इतने गोल्ड नहीं खरीद सकती, मैं इतने सोने नहीं खरीद सकती। मैं इतने सोने कैसे खरीद सकती हूँ, या मैं इतने सोने नहीं खरीद सकती क्योंकि मैं क्या हूँ, बहुत ही पुअर हूँ। ठीक है, प्रेजेंट। अब आगे देखते हैं सी में क्या कह रहा है। प्रेजेंट द स्टोरी द शू मेकर एंड द एल्व्स इन द फॉर्म ऑफ अ स्किट। स्किट मतलब होता है छोटी प्रदर्शनी या छोटा सा नाटक, ठीक है, जिसे छोटे मोटे घर में बच्चे लोग खेलते हैं। ठीक है, तो उसी के रूप में आपको क्या करना है, अगर मौका मिले तो इसको क्लास में करने की कोशिश करें। ये सारे बहुत सारे क्या हैं, एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, हमारा मेन चीज़ है इस एक्टिविटी के बाद है जो है वो है प्रोजेक्ट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और प्रोजेक्ट सबको बनाना है। ठीक है, देयर आर मैनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द लेसन। फॉर एग्जाम्पल पुअर, लिटिल, परफेक्ट, फाइन। कहने का मतलब है डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मीन्स ऐसा वर्ड जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करे। जैसे आदमी गरीब है या अमीर है, इसके बारे में कौन डिस्क्राइब करता है, पुअर वर्ड डिस्क्राइब करता है। किसी चीज़ को छोटा है या बड़ा है उसके बारे में कौन डिस्क्राइब करता है, लिटिल डिस्क्राइब करता है। कोई चीज़ अच्छा बना है या अच्छा नहीं बना है इसके लिए कौन डिस्क्राइब करता है, परफेक्ट वर्ड। कोई चीज़ बहुत ही अच्छा है या नहीं है ये कौन डिस्क्राइब करता है, फाइन वर्ड डिस्क्राइब करता है। तो ऐसे ही डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि किसी चीज़ के क्वालिटी के बारे में, उसकी साइज, शेप, रंग, रूप, आकार, प्रकार, इन सारी चीज़ों के बारे में जिस वर्ड से हमें जानकारी मिलती है उसे कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स का आपको कम से कम इस बुक को छोड़कर 5 और भी मतलब इस एग्जाम्पल को छोड़कर आपको 5 ऐसे नए वर्ड बुक से लेने हैं। ऐसे 5 इनको छोड़कर इस बुक से आपको 5 वर्ड लेने हैं और उनमें से उस 5 वर्ड को आपको क्या बनाना है, सेंटेंस भी बनाना है। ठीक है, इस लेसन से 5 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लेना है और उन्हें अपने सेंटेंस में यूज़ भी करना है। उसकी मीनिंग, तब ही उसकी मीनिंग समझ में आएगी कि ये वर्ड है वो क्या कह रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें आज का हमारा जो कहना चाहिए कि इम्पॉर्टेंट और भी वर्क होता है, जिसे यूज़ द फॉलोइंग प्रोवर्ब इन योर सेंटेंस, मीनिंग इज गिवन। आपको एक सेंटेंस बनाना है, उस सेंटेंस में इस प्रोवर्ब को यूज़ करना है। टुमारो नेवर कम्स, है ना, कल कभी नहीं आता, कल कभी नहीं आता। ठीक है,
मीनिंग डोंट पुट समथिंग ऑफ फॉर टुमारो। कहने का मतलब है कोई भी काम कल के लिए मत छोड़ो। कहने का मतलब जो कबीरदास जी ने कहा है ना, काल करे सो आज कर। अरे कल के लिए मत छोड़ो, जो करना है वो आज ही कर लो। ठीक है, कल कभी नहीं आता। ठीक है, तो I hope that you all have understood this exercise and we have finished your chapter 2. Okay, एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप सबको हमारे स्कूल के इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। ठीक है, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप वीडियो देखते हैं उन्हें लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करने से हमें भी समझ में आएगा कि हमारी जो वीडियोस हैं वो क्या होगा, सर्च में प्रियोरिटी में रहेगा, पहले में रहेगा। ठीक है, जब भी आप सर्च करेंगे यूट्यूब वगैरह चैनल वगैरह का तो जल्दी आ जाएगा। और लाइक करने से हमें क्या मिलेगा, कहने का मतलब है अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर कोई डाउट हो, कहीं पे कोई क्वेरीज हो तो आप व्हाट्सएप पे या फिर कॉल करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए चलते हैं। ठीक है, गुड बाय। मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में।